خوش ہو جا احمد، تیری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا ہے۔ تیرا نکاح شہر کی سب سے دولت مند اور رئیس عورت نرگس بی بی سے طے ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرے، میں ابھی صرف 18 سال کا ہوں، میری تعلیم ادھوری ہے۔ اور نرگس بی بی تو 70 سال کی ہیں۔ ابو جان، اگر امی زندہ ہوتی تو کیا وہ بھی میری قسمت کا یہی فیصلہ کرتی؟ احمد ایک 18 سالہ معصوم لڑکا جس کی تقدیر کا فیصلہ اس کے اپنے باپ اور سوتیلی ماں شبنم نے ایک ایسی عورت کے نام کر دیا تھا جو عمر میں اس کی دادی کے برابر تھی۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اب احمد کی زندگی اندھیروں میں ڈوب جائے گی، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے سامنے کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ جب وہ چاہے تو حالات کا رخ پلٹ دے، زمین و آسمان کو ایک کر دے۔ احمد صرف 8 برس کا تھا جب ایک حادثے میں اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ اپنے باپ اور سوتیلی ماں شبنم کے سہارے زندہ تھا۔ باپ دل کا برا نہ تھا، نرم مزاج اور صاف نیت والا انسان تھا، لیکن اپنی تیز زبان اور خود غرض بیوی شبنم کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتا۔ شبنم کے دل میں احمد کے لیے کوئی نرمی نہ تھی۔ اس کی نظر میں احمد صرف ایک اضافی بوجھ تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی احمد کی آزمائشوں کا آغاز ہو جاتا۔ ابھی اندھیرا پوری طرح چھوٹا بھی نہ ہوتا کہ شبنم کی کڑکدار آواز گونجنے لگتی۔ احمد، کب تک سوئے رہو گے؟ فوراً اٹھو، کنویں سے پانی بھرنا ہے، بھینسوں اور گائے کے آگے چارہ ڈالنا ہے اور کھیت کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جلدی کرو، سارا کام تمہارے ذمے ہے۔ احمد خاموشی سے اٹھ جاتا۔ سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا دھوپ، اس کے لیے کوئی آرام نہ تھا۔ وہ صبح سویرے کنویں سے پانی کھینچتا، جانوروں کو چارہ ڈالتا، بادھی کی صفائی کرتا اور کھیت میں جا کر محنت کرتا۔ اس کے ہاتھ کم عمری میں ہی سخت اور کھردرے ہو چکے تھے۔ شبنم اپنے بچوں کو اچھا اور تازہ کھانا دیتی، مگر احمد کے حصے میں اکثر بچا ہوا کھانا آتا۔ وہ خاموشی سے کھا لیتا اور دل ہی دل میں کہتا، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے صبر عطا فرما۔ احمد ذہین اور خوبصورت لڑکا تھا، مگر غربت، محنت اور اداسی نے اس کے چہرے کی چمک مدھم کر دی تھی۔ محلے کے لوگ اکثر افسوس سے کہتے، اللہ نے اس لڑکے کو بڑا دماغ دیا ہے، مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ احمد کی ایک ہی خواہش تھی، تعلیم حاصل کرنا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، مگر شبنم نے 10ویں جماعت کے بعد ہی اس کی پڑھائی روک دی تھی۔ احمد، تجھے پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ کتابیں پڑھ کر وقت ضائع مت کر، ہنر سیکھ، کھیتی باڑی کا کام سیکھ، بھینسیں اور گائے سنبھالنا سیکھ، یہ سب تیرے لیے اصل کام ہے۔ وقت گزرتا گیا، محلے والے باتیں کرنے لگے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کب کرو گے؟ یہ بات شبنم بی بی کے کانوں تک پہنچی تو اس کے دماغ میں فوراً احمد کے لیے فکر اٹھنے لگی۔ اس نے سوچا، ہمیں احمد کے لیے کون رشتہ دے گا، اور ہم تو پہلے ہی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں بعد سکینہ بی بی آئی، جو رشتے کروانے میں ماہر تھی۔ شبنم کے کان میں بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں۔ سن شبنم، شہر کی سب سے امیر اور رئیس عورت نرگس بی بی، جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں اور دولت کی کوئی کمی نہیں، وہ کسی جوان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ جو بھی ان سے شادی کرے گا اس کے گھر والوں کو 5 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کچھ ہی دن بتائے ہیں، کیونکہ وہ بیمار ہیں اور انہیں آخری سمے میں کسی نیک انسان کے سہارے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی جائیداد کا وارث بن سکے۔ شبنم بی بی کے دماغ میں فوراً احمد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا، احمد سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور 5 لاکھ روپے بھی ہاتھ لگ جائیں گے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکان پھیل گئی۔ واہ، یہ تو بہت اچھا چانس ہے، اس چانس کو میں کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شبنم بی بی نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب یہ موقع اس کے لیے سب سے اہم ہے اور وہ ہر طرح سے اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ شام ڈھل رہی تھی، بازار کی رونق مند ہو چکی تھی۔ احمد کے ابو تھکے ہارے دکان بند کر کے گھر واپس آئے۔ چہرے پر دن بھر کی محنت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، شبنم بی بی نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ سنیے جی، آج سکینہ آئی تھی۔ احمد کے ابو نے جوتے اتارتے ہوئے پوچھا، کون سکینہ؟ ارے وہی، نرگس بی بی کے یہاں کام کرتی ہے، وہ ایک خاص پیغام لے کر آئی تھی۔ احمد کے ابو چونک گئے۔ کیسا پیغام؟ شبنم بی بی ذرا قریب ہو کر بیٹھی اور دھیمی آواز میں بولی،
शहर की जो रईस औरत है ना, नरगिस बीबी, वह शादी करना चाहती हैं। अहमद के अब्बू ने हैरानी से कहा, क्या इस उम्र में? शबनम ने फौरन बात आगे बढ़ाई। हाँ, मगर उन्होंने शर्त रखी है कि वह किसी जवान लड़के से शादी करेंगी और जो लड़का उनसे शादी करेगा उसके घर वालों को 5 लाख रुपए इनाम देंगे, पूरे 5 लाख। कमरे में कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अहमद के अब्बू गहरी सोच में पड़ गए। लेकिन हमें इससे क्या? उन्होंने आहिस्ता से कहा। शबनम बीबी ने फौरन मौका संभाला। हमें क्यों नहीं? आप जरा सोचिए, हमारा कर्जा सर पर चढ़ा हुआ है, दुकान का किराया अलग, सूद अलग, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, और अहमद वह पढ़ना चाहता है, कॉलेज की फीस, किताबें, खर्चे, हम कहां से लाएंगे इतने पैसे? अहमद के अब्बू ने थके हुए लहजे में कहा। तो तुम क्या कहना चाहती हो? शबनम ने साफ साफ कहा। क्यों ना हम अहमद की शादी नरगिस बीबी से करवा दें? हमारा कर्जा भी उतर जाएगा, घर संभल जाएगा, और अहमद वह हवेली का मालिक बन जाएगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। वैसे भी हम उसकी पढ़ाई का बोझ ज्यादा दिन नहीं उठा सकते। यह सुनकर अहमद के अब्बू का दिल धक से रह गया। शबनम, अहमद अब भी सिर्फ 18 साल का है, वो अभी बच्चा है, और नरगिस बीबी, वो तो उम्र में उसकी दादी के बराबर हैं। लोग क्या कहेंगे? शबनम ने कुछ सख्त लहजे में जवाब दिया। लोगों ने कभी हमारा कर्जा अदा किया है? लोगों ने कभी हमारे घर का चूल्हा जलाया है? जमाना सिर्फ बातें करता है, हमें अपनी फिक्र करनी है। और वैसे भी अहमद की किस्मत खुल जाएगी, दौलत, हवेली, इज्जत, सब कुछ मिल जाएगा उसे। अहमद के अब्बू खामोश हो गए। उनके जहन में अहमद का मासूम चेहरा घूमने लगा। वो जानते थे कि अहमद पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। वो अक्सर रातों को जागकर किताबें पढ़ता था, ख्वाब देखता था कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, मगर वो राजी नहीं होगा। उन्होंने कमजोर सी आवाज में कहा। शबनम बीबी ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, राजी हो जाएगा, मैं समझा लूंगी। गुर्बत इंसान को हर बात मानने पर मजबूर कर देती है। बाहर सहन में अहमद अपनी किताबें खोले बैठा था, मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए, और अंदर उसकी तकदीर का सौदा तय हो रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद अहमद के अब्बू ने गहरी सांस ली। अगर यही तुम बेहतर समझती हो तो बात आगे बढ़ा लो। शबनम बीबी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मगर उन्हें यह अंदाजा न था कि इस फैसले की कीमत सिर्फ पैसों से अदा नहीं होगी, बल्कि एक मासूम दिल के ख्वाबों से भी। अगली सुबह शबनम बीबी जल्दी उठ गई। सारी रात वो करवटें बदलती रही थीं। जहन में बस एक ही बात घूम रही थी, 5 लाख रुपए। कुछ देर बाद सकीना दरवाजे पर आ गई। शबनम ने फौरन उसे अंदर बुला लिया और इधर उधर देखकर आहिस्ता आवाज में बोली, सकीना, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने बेटे अहमद की शादी नरगिस बीबी से करवाना चाहती हूँ। तुम ये बात नरगिस बीबी तक पहुंचा दो। हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। सकीना ने हैरानी से पूछा, सच बीबी जी? शबनम ने पुख्ता लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल सच, लेकिन याद रखना, जो 5 लाख रुपए की बात हुई थी वो शर्त पूरी होनी चाहिए। सकीना ने सिर हिलाया। आप फिक्र ना करें, मैं आज ही ये पैगाम पहुंचा दूंगी। सकीना के जाते ही शबनम के चेहरे पर एक अजीब सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो सीधी अहमद के कमरे की तरफ बढ़ी। अहमद मेज पर झुका किताब पढ़ रहा था, आंखों में ख्वाब और दिल में पढ़ लिख कर कुछ बनने की ख्वाहिश। अहमद, शबनम ने आवाज दी। जी अम्मी, अहमद ने सिर उठाया। जरा बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। अहमद बाहर आया तो देखा अब्बू भी पास ही बैठे हैं, मगर उनकी नजरें झुकी हुई हैं। शबनम ने बिना घुमाए फिराए साफ कहा, तुम्हारी शादी तय कर दी है हमने। अहमद चौंक गया। क्या? किससे? शहर की रईस औरत नरगिस बीबी से। वो तुमसे शादी करना चाहती हैं, और जो उनसे शादी करेगा उसके घर वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। हमने हाँ कर दी है। अहमद का रंग जर्द पड़ गया। अम्मी, वो तो उम्र में मेरी दादी के बराबर हैं। मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। मेरा ख्वाब है कि मैं आगे पढ़ूं, कुछ बनूं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? शबनम का लहजा सख्त हो गया। ख्वाबों से पेट नहीं भरता अहमद, घर कर्ज में डूबा हुआ है। हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। अहमद ने बेबसी से अपने अब्बू की तरफ देखा। अब्बू, आप भी राजी हैं? उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, हालात हमारे साथ नहीं हैं, शायद यही तुम्हारे नसीब में है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया।
उस रात वो जाए नमाज पर बैठा देर तक रोता रहा। चंद दिनों बाद निकाह का दिन आ गया। घर में कोई खुशी न थी, न गाने न हंसी, बस संजीदगी और खामोशी। नरगिस बीबी जब आई तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी से उतरी। हाथ में छड़ी, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, सांस भारी। 7 मुलाजिमा सहारा दे रही थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। अहमद बिन अब्दुर्रहमान, क्या आपको नरगिस बीबी अपने निकाह में कबूल हैं? अहमद ने आंखें बंद की, गला सूख रहा था। चंद लम्हों बाद धीमी आवाज में कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया। नरगिस बीबी के वकील ने भारी लिफाफा शबनम के हाथ में रखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अहमद की तरफ देखकर कहा, जा अहमद, अब तेरा नसीब जाग गया है। आज से तू नरगिस बीबी के साथ ही रहेगा, हमें शर्मिंदा मत करना। अहमद ने आखिरी बार घर को देखा, फिर खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। यूं उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू हो गया। हवेली बहुत शानदार थी, मगर खामोशी में डूबी हुई। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची छतें, कीमती फर्नीचर, सब कुछ महंगा, मगर कहीं जिंदगी की रौनक नहीं। अहमद गाड़ी से उतरा तो मुलाजिम ने दरवाजा खोला। वो अंदर दाखिल हुआ। संग मरमर के फर्श पर कदम रखते हुए दिल धड़क रहा था। नरगिस बीबी, जो अहमद के साथ गाड़ी में आई, कमरे में आते ही पलंग पर आहिस्ता से बैठ गईं। उनके चेहरे पर नरमी थी, मगर आंखों में फिक्र और तजुर्बे की गहराई झलक रही थी। हाथ में छड़ी थी और सांस थोड़ा भारी था। उन्होंने अहमद की तरफ देखा और धीरे से कहा, बैठ जाओ अहमद, डरने की जरूरत नहीं है। अहमद ने सिर झुकाया और आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गया। नरगिस बीबी ने गहरी सांस ली और बोली, अहमद, मैं जानती हूं तुम दिल से राजी नहीं हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी उम्र पढ़ने और आगे बढ़ने की है। शायद तुम्हारा दिल कह रहा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी रोक दी है। अहमद ने पहली बार उनकी तरफ नजरें उठाईं। आंखों में उदासी थी, मगर थोड़ी उम्मीद भी चमक रही थी। मैं पढ़ना चाहता था, उसने धीमी आवाज में कहा। नरगिस बीबी ने सिर हिलाया, और तुम पढ़ोगे भी। मैंने तुमसे निकाह अपनी तन्हाई के लिए किया है, तुम्हारे ख्वाब छीनने के लिए नहीं। मेरे पास दौलत है, हवेली है, मगर कोई अपना नहीं। शौहर बरसों पहले चला गया, औलाद नहीं हुई, रिश्तेदार सिर्फ जायदाद चाहते हैं। मैं अकेली हूं और मौत करीब है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं। मुझे किसी सच्चे साथ की जरूरत थी, किसी ऐसे इंसान की जो आखिरी वक्त में मेरा हाथ थाम ले। अहमद खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया ताकि तुम मेरा कानूनी वारिस बन सको। अहमद की आंखों में फिर आंसू आ गए। अब आप मेरी बीवी हैं, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। नरगिस बीबी की आंखों में नमी आ गई। अहमद, तुमने मेरे दिल को सुकून दे दिया। तुम वाकई अल्लाह की रहमत हो। उस दिन से अहमद की नई जिंदगी शुरू हुई। वो सुबह फजर से पहले उठता, नमाज पढ़ता, नरगिस बीबी की तीमारदारी करता, दवाइयां देता, नरम खाना तैयार करता, बाग में सहारा देकर ले जाता। रात को खांसी बढ़ती तो वो सिरहाने बैठता, हाथ पकड़ता, कुरान की आयतें पढ़ता। नौकर हैरान थे। अहमद ने कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन रहीम चाचा ने कहा, अहमद, तू वाकई फरिश्ता है। अहमद मुस्कुरा दिया। रहीम चाचा, नरगिस बीबी ने मुझे इज्जत दी, यही काफी है। आहिस्ता आहिस्ता नरगिस बीबी की तबीयत कुछ संभलने लगी। वो अक्सर कहती, अहमद, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी है। उधर अहमद की सौतेली मां को जब मालूम हुआ कि नरगिस बीबी अभी जिंदा है और अहमद सुकून से रह रहा है, तो उसके दिल में जलन बढ़ गई। अरे वाह, बूढ़ी अभी तक जिंदा है। अहमद तो वहां राज कर रहा होगा। एक दिन उसने अहमद के वालिद से कहा, चलो हवेली चलकर आते हैं, अहमद से भी मिल लें और नरगिस बीबी से भी मुलाकात हो जाए। अहमद के वालिद को भी अपने बेटे से मिलने का दिल था। वो और उसकी बीवी एक दिन हवेली पहुंच गए। जब उन्होंने वो अजीम दरवाजे, संगे मरमर के फर्श और बीच सहन में बुलंद फव्वारे देखे, तो अहमद की सौतेली मां की आंखों में लालच की चमक आ गई। वाह, कितनी शानदार हवेली है। मगर अंदर जाकर जो मंजर उन्होंने देखा, वो देखकर दोनों हैरान रह गए। अहमद सादा सूती कपड़ों में मलबूस था और नरगिस बीबी के पांव दबा रहा था। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। माजिद और शबनम दोनों अंदर दाखिल हुए। शबनम ने अहमद को देखा तो कहने लगी, अरे अहमद, हम तो समझे थे तुम यहाँ पर राज करोगे। ये क्या, तुम तो बिल्कुल सादे से लिबास में बैठे हो।
अहमद ने अपने वालिद माजिद की तरफ देखा और कहा, अब्बा जान, आपने मुझे इनके हवाले कर दिया, मगर अल्लाह की कसम नरगिस बीबी ने मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है और मैं उनका एहसानमंद हूं। ये मेरे लिए रहमत है। शबनम फौरन लहजा बदल कर बोली, और नरगिस बीबी, हमने तो अहमद को बहुत मोहब्बत से पाला है, अब वो आपके घर के मालिक हैं, हमें तो बस उनकी खुशी चाहिए। नरगिस बीबी खामोश हो गई। वो सब कुछ समझ चुकी थी। कुछ देर बाद शबनम और माजिद वापस चले गए। वक्त गुजरता गया, महीने साल में बदल गए। डॉक्टर ने 1 साल का वक्त बताया था, मगर अहमद की मोहब्बत, खिदमत और दुआओं ने नरगिस बीबी को 2 साल और दे दिए। इन 2 सालों में उनके दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। यह सिर्फ निकाह का रिश्ता नहीं रहा था, बल्कि एक बूढ़ी औरत और उसके खलूस से खिदमत करने वाले शौहर का रिश्ता बन चुका था। नरगिस बीबी अक्सर कहती, अहमद, अल्लाह ने तुम्हें मेरी आखिरी सांसों में मेरे पास भेजा है, तुमने मेरा अकेलापन खत्म कर दिया है। अहमद की आंखें नम हो जाती। नरगिस बीबी, आपने मुझे इज्जत दी, सहारा दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। खामोशी से नरगिस बीबी ने अपने वकील अदनान साहब को बुलाया और अपनी वसीयत तैयार करवाई। अहमद को इस बात का इल्म नहीं था। एक रात अचानक नरगिस बीबी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी, सीने में शदीद दर्द उठा। अहमद घबरा गया, फौरन डॉक्टर को बुलाया। नौकर दौड़ आए। डॉक्टर ने चेक करने के बाद गहरी सांस ली और सिर हिलाया। तैयार हो जाइए, अब बस चंद घंटों की बात है। नरगिस बीबी का दिल धक से रह गया। वो रोते हुए अहमद के पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। मेरा वक्त आ गया है, मैं जा रही हूं। मैं तुम्हें खुशियां न दे सकी, बस तुमसे खिदमत करवाई। ऐसा न कहिए नरगिस बीबी, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। ये हवेली, दुकानें, फैक्ट्रियां, जमीनें, सब कुछ। और एक वादा करो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, डॉक्टर बनो, अपने ख्वाब पूरे करो। अहमद ने रोते हुए कहा, वादा है नरगिस बीबी। नरगिस बीबी ने आहिस्ता से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उनकी सांस थम गई। हवेली में कहराम मच गया। खबर फैलते ही दूर दराज के रिश्तेदार गिद्धों की तरह जमा होने लगे। भतीजा शाहिद, भांजा वसीम और दूसरे सब आ गए। शबनम और माजिद भी पहुंच गए। शबनम के चेहरे पर छुपी खुशी थी, जो वो झूठे आंसुओं के पीछे छुपा रही थी। जनाजा हुआ, तदफीन हुई। 3 दिन बाद वकील अदनान साहब हवेली आए। सबको बड़े हॉल में जमा किया गया। शाहिद बोला, वकील साहब, जल्दी वसीयत पढ़ें, हम असल वारिस हैं। अदनान साहब ने संजीदगी से वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं नरगिस बीबी पूरे होश व हवास में ये वसीयत लिख रही हूं। मेरे तमाम रिश्तेदार जान लें कि जब मैं बीमार थी, आप में से किसी ने मेरा हाल न पूछा, इसलिए मैं अपने खानदान के किसी फर्द को 1 पैसा भी नहीं दे रही। हॉल में सन्नाटा छा गया। अदनान साहब ने आगे पढ़ा, मेरी जिंदगी के आखिरी 2 साल जिस शख्स ने मेरी बेलौस खिदमत की, जिसने रातों को जागकर मेरा ख्याल रखा, जिसने कभी कुछ न मांगा, वो मेरा शौहर अहमद है। लोग कहते हैं वो मेरा शौहर नहीं, मगर मेरे लिए वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई रहमत था। इसलिए मैं अपनी तमाम जायदाद, ये हवेली, 100 दुकानें, 3 फैक्ट्रियां, जमीनें और बैंक बैलेंस, सब कुछ अहमद के नाम करती हूं। आज से मेरे सारे बिजनेस के मालिक अहमद हैं। हॉल में हंगामा मच गया। ये झूठ है, शाहिद चीखा। जादू किया होगा इसने, वसीम चिल्लाया। अदनान साहब ने सख्त लहजे में कहा, वसीयत कानूनी तौर पर रजिस्टर है, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं, 3 गवाह हैं। अदालत जाना है तो चले जाएं, मगर 1 पैसा नहीं मिलेगा। शबनम का चेहरा जर्द पड़ गया। माजिद को यकीन नहीं आ रहा था। जिस अहमद को वो बोझ समझते थे, वो आज शहर का अमीर तरीन आदमी बन चुका है। वकील साहब ने अहमद की तरफ देखा। वो कोने में सिर झुकाए बैठा रो रहा था। उसे दौलत की खुशी नहीं थी, उसे तो नरगिस बीबी के जाने का गम था, जिसने उसे इज्जत दी थी। रिश्तेदार धमकियां देते हुए हवेली से निकल गए। अब हॉल में सिर्फ शबनम, माजिद और अहमद बाकी थे। वकील साहब जा चुके थे। शबनम का रंग बदल गया। वो फौरन अहमद के पास दौड़ी और उनके पैरों में गिर गई। अहमद, मेरी जान, मेरे बेटे, देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, मगर अब तुम अकेले इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालोगे? इतनी हवेली, इतनी दुकानें, इतनी जिम्मेदारी। तुम तो अभी जवान हो, चलो हमारे साथ। मैं और तुम्हारे अब्बू माजिद, हम सब मिलकर संभाल लेंगे।
हम सब एक खानदान की तरह रहेंगे। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगी। माजिद भी आगे बढ़ा, उसने हाथ जोड़ लिए। अहमद बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना भेज दिया, मगर देखो अल्लाह ने सब ठीक कर दिया। अब तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा अपना हूं। अहमद ने धीरे से अपने कदम पीछे खींचे और अपनी आंखों से शबनम की तरफ देखा। आज उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब ताकत और खुद एतमादी थी। उसने धीमी मगर पुरअसरार आवाज में कहा, अम्मा जान, जब मुझे एक वक्त की रोटी की जरूरत थी तब आपने मुझे ताने दिए, बासी रोटियां फेंक दी। जब मुझे मोहब्बत और सहारा चाहिए था, आपने मुझे 68 साल की बूढ़ी औरत के हवाले कर दिया। चंद नोटों के लिए मेरे ख्वाब छीन लिए, मेरी पढ़ाई छीन ली। आपने तो मुझे आग में धकेल दिया, मगर ये मेरा अल्लाह था जिसने उस आग को मेरे लिए फूलों का बाग बना दिया। उसने मेरी किस्मत बदल दी। शबनम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये झूठे आंसू थे। अहमद, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हुई, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। अहमद ने माजिद की तरफ देखा। माजिद शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। खूनी रिश्ता बाप बेटे का उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन शबनम ने अपने बेटे को उसकी मर्जी के बिना किसी के हवाले किया था। जिस दिन अहमद ने अपनी आजीजी दिखाई और फिर अपना मुंह मोड़ लिया। माजिद का सिर झुक गया। दिल में पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अहमद आगे बोला, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। नरगिस बीबी ने मेरे लिए सब कुछ ठीक छोड़ दिया है। वकील साहब हैं, मैनेजर हैं, सब संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह का हाथ मेरे ऊपर है, वही मेरा रखवाला है। और हाँ, नरगिस बीबी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। मैं उनका वादा जरूर पूरा करूंगा। शबनम ने आखिरी कोशिश की, प्लीज तुम इतने सख्त मत बनो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमने गलती की। अहमद ने बात काट दी, मैं आपसे बदला नहीं ले रहा, मैं सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा हूं। मुझे मालूम है अगर मैंने आपको दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दी तो आप फिर से मुझे तबाह कर देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम अलग रहें। आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। ये कहकर अहमद अपने कमरे की तरफ चल दिया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शबनम वहीं बैठकर रोती रही। माजिद ने उसे उठाया। दोनों सर पीटते हुए, शर्मिंदा और पछताते हुए हवेली से बाहर निकल गए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। अहमद ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, मगर वो कोई आम अमीर शख्स नहीं बना। उसने नरगिस बीबी की दौलत को अपनी आराम और ऐश के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने नरगिस बीबी के नाम पर एक बड़ा अस्पताल खोला, जहां गरीबों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता था। बेहतरीन डॉक्टर रखे गए और अच्छी दवाइयां मुहैया कराई गईं। फिर उसने एक यतीम खाना खोला, जहां बेसहारा बच्चों को रहने की जगह मिलती, उन्हें पढ़ाया जाता, अच्छा खाना दिया जाता और मोहब्बत से रखा जाता। कुछ साल बाद डॉक्टर अहमद शहर के मशहूर और रहमदिल डॉक्टर बन चुके थे। लोग कहते थे, ये वही लड़का है जिसे कभी बोझ समझा गया था। मगर आज वो हजारों लोगों का सहारा था। हर साल नरगिस बीबी की बरसी पर वो उनकी कब्र पर जाता, फूल रखता और चुपचाप कहता, आपने मुझ पर भरोसा किया था, मैंने आपका वादा निभा दिया। और सच यही है, जिसे लोग खत्म समझ लेते हैं वहीं से अल्लाह नई कहानी शुरू करता है। एक दिन अहमद अपनी गाड़ी में जा रहा था। रास्ते में उसने एक औरत को भीख मांगते देखा। वो बहुत बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। अहमद ने गाड़ी रोकी। जब वो करीब आया तो उसकी सांस रुक गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां शबनम थी। शबनम का हाल इंतहाई खराब था। पुराने फटे कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा, हाथ में भीख का प्याला। अहमद के दिल में दर्द उठा। उसने पूछा, अम्मी जान, ये क्या हाल है आपका? शबनम ने अहमद को पहचान लिया। शर्म से उसकी आंखें झुक गईं और आंसू बहने लगे। अहमद बेटा, मैं बर्बाद हो गई। मेरा शौहर यानी तुम्हारे वालिद दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया से चल बसे। दुकानें भी खत्म हो गईं। बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं सड़कों पर रहती हूँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने शबनम का हाथ पकड़ लिया। अम्मी जान, चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं तेरे लायक नहीं। मैंने तेरे साथ जो किया उसका हिसाब देना चाहिए। मैं तेरे कदम चूमने के लायक भी नहीं। अहमद ने नरमी से कहा, अम्मी जान, अल्लाह माफ करने वाला है
और अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो मैं कौन हूं? चलिए, अब आप मेरे साथ रहेंगे। अहमद शबनम को अपनी हवेली ले आया, उसे खाना दिया, कपड़े दिए और सबसे बढ़कर इज्जत दी। शबनम रोज अहमद के कदम पकड़कर माफी मांगती। अहमद हर बार उसे उठाता और कहता, अम्मी जान, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखिए। अल्लाह ने दोनों को एक नया मौका दिया था। एक दिन शबनम ने कांपती आवाज में कहा, अहमद बेटा, मैं अपनी बाकी जिंदगी यतीम बच्चों की खिदमत में गुजारना चाहती हूँ, मुझे माफी का मौका दो। और उस दिन के बाद शबनम भी बदल गई। वो यतीम बच्चों की देखभाल करने लगी, उन्हें वही मोहब्बत देने लगी जो उसने कभी अहमद को नहीं दी थी। बच्चे उसे दादी अम्मा कहकर पुकारते। उसकी आंखों में अब सुकून था, क्योंकि उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था। और सच यही है, अल्लाह जब सजा देता है तो इंसान को झकझोर देता है, मगर जब रहमत करता है तो दिल बदल देता है। जिसने जुल्म सहा उसने माफ कर दिया, जिसने जुल्म किया उसे तौबा का मौका मिल गया। यही असली कामयाबी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।